Namaskar, Abhar. Greetings to everybody connecting with us now and whenever they watch this. We welcome you here at Janaki Talks with my partner, collaborator Pradeep Singh ji from Roots to Bloom and Atmanirbhar Bharat. It is a very special episode today. I have to say that. Keeping in view why I'll tell you going forward. उससे पहले बहुत बड़ा थैंक यू और ग्रैटिट्यूड हमारा बनता है हमारी तरफ से, हमारे कोलैबोरेटर्स का, हमारे सपोर्टर्स का, जिन्होंने एंगेज किया इसके साथ, कोऑपरेशन दिखाई और ये शो किया कि किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है जब हम एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, सोच में भी. सो लेबल्स असाइड, वी आर ऑल यूनिक, राइट? वी आर ऑल equal. So think equal, be equal is what She Rise Break the Bias stands for, and Janki felicitation happens on the 1st of May, Greater Noida, and we both are looking forward to hosting you with all our team members, and that is where I come to why this is special. We have Dr. Mandakini Shukla. How are you, Dr. Mandakini Shukla? Good to see. She will be joining soon. And thanks Amna for introducing how we are going and taking forward this 1st of May activity. That is our conference come award, where I and you will be hosting not only with the venue partners, not only with the cooperation teams, but also with all our other collaborators and all the invitees and all the hosts, of course, those who will be supporting us during that period. I'm very much actually excited to actually inform you all that during this course of this 1 month or so, when we were discussing about to go forward, taking ahead this particular event, we were discussing about who all will be joining us, what will be the segmentation of who all the groups or who all the organizations who will be supporting us. And just taking forward against those discussions, what I and Amna was discussing, there is one good thing actually. I and Amna was discussing about the one thing, that is Janki Skill Centers, and for which we are taking a note. Not only here, we will be taking that note and that discussion during that conference too. So I would like to say Amna to say some few words on that initiative of ours, that is Janki Skill Centers. By the time Dr. Mandakini ji will be joining us soon. Definitely, Pradeep ji, and I think there must be something very important that Mandakini ji has to attend, but she'll be joining us soon, guys. So it's a good time in the meanwhile for us to connect and exchange. So Janki Skill Centers, when me and Pradeep, as Pradeep said, when we were working and thinking कि कौन आने वाला है, कैसे इसमें जुड़ाव बनेगा, हम क्या क्या कर सकते हैं इसके जरिए, हमने बहुत सारा रिसर्च किया, हमने बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम डेटा बोलते हैं, हमने गैदर किया और ये समझा कि कहीं ना कहीं अवेलेबल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, ये जो वर्ड्स है ना, ये सुनने में बड़े कमाल के लगते तो हैं और somehow नजर नहीं आते हैं when it comes to not so protective segment of women, or even for that matter if I talk about men. हमारी कोशिश जनकी पर, प्रदीप और मेरी, और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका हमें थम्स अप जिसको हम कहते हैं, या वो ग्रीन टिक मिल रहा है, या जो जुड़ते जा रहे हैं, उनका बेसिकली और हमारा फोकस सिर्फ इतना है कि इट शुड बी एक्चुअली अवेलेबल, एक्सेसिबल टू ऑल. अफोर्डेबल की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो ये कह रहे हैं कि इमोशनल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बहुत जरूरी है, अपग्रेडेशन आना बहुत जरूरी है, सिर्फ एक्शंस में नहीं, आपकी सोच में. यहाँ से हाइब्रिड जब हम जाते हैं, जनकी टॉक्स की हम बात करते हैं, जो हम ये कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, प्रदीप और मुझे, आई एम श्योर वी ऑल नो कि हमारे अपने एंगेजमेंट्स हैं, वी ऑल आर बिजी डूइंग सो मच. हमारे जो गेस्ट, जो जनकीज आ रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, सबके पास अपना अपना एक एंगेजमेंट है, दे आर बिजी. बट कम टू थिंक ऑफ इट, ये जो बातचीत है ना, ये जो हमारे विचारों का आदान प्रदान है, इसका होना अत्यंत जरूरी है, जो हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो हम करना चाह रहे हैं उसके ऊपर विचारधारा क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है. सो जैसे प्रदीप ने आपसे शुरू में कहा और बताया कि हम बहुत एक्चुअली में ग्रेटफुल हैं कि बहुत से लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया है और सराहा है,
और हम चाहेंगे कि जो ये लोग देखते हैं या जब भी इसको देखते हैं, आप जरूर कनेक्ट करिए हमारे साथ। हमारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप कनेक्ट करिए, बताइए किस तरह से we guys can collaborate, we guys can do something together to make and empower, which is why we are engaging today, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। So जो वॉइस इट आउट है, जो मेरा फाउंडेशन है जिसके अंतर्गत हम जो काम करते हैं, प्लस जो अदर मेरे एवेन्यूज है, मेरे हैंडल्स पे मेरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बिकॉज कहते हैं आपका काम को बात करने दीजिए, आप कम बात करिए। बट talking about voice it out little, what I'm saying is that is the motto: engage and empower in the best way possible. And I'm fortunate that Pradeep here with me, we connected at a time, honestly, when times were really tough for a lot of people. And so the journey has been fairly long, but that long journey in hindsight is very gratifying. Why? Because we're doing very good and constructive work. So हम चाहेंगे अगर आप इंटरजेक्ट करें तो एम्पावर करने के लिए इंटरजेक्ट करिए, और हम इससे इसी तरह से सोशल चेंज की तरफ, रिफॉर्म की तरफ लेकर जाएंगे। सो प्रदीप, मुझे ये लगता है कि ये जो आपकी और मेरी गुफ्तगू है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपका taking this interesting गुफ्तगू forward actually by the time मंदाकिनी जी join us, मैं ये बताना चाहूंगा कि हम एक्चुअली जन की स्किल्स को करना क्या चाहते हैं, या हम किस तरीके से उसको हमने सोचा है, what all the things, of course there also we will talk about, या मंदाकिनी जी is here। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम some 6 of the cities, 6 of the states को हम टारगेट से करेंगे। वो स्टेट क्या होंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमें जानना, हमारे लोगों को जानना कि हम टारगेट किस एरिया को कर रहे हैं या किस जगह को करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने फोकस ये किया कि हम लोग अवेलेबल कहाँ हैं, हमारे लोग अवेलेबल कहाँ हैं, हमारे सपोर्टर्स, हमारे इनेबलर्स कहाँ मौजूद है। क्योंकि अगर जब तक वो पिलर नहीं है तब तक हम इस चीज को शायद सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हमने सबसे पहले सोचा कि अगर हम जन की करेंगे, जन की कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो 4 हमने सिटी सोची, उसमें से एक लखनऊ जहाँ मैं हूँ, एक दिल्ली जहाँ पे हमारे बाकी लोग सपोर्टर्स हैं, आमना जी भी हैं, मंदाकिनी जी भी हैं। तीसरी सिटी सोची हमने जयपुर, जहाँ पे मैंने एक्सटेंसिवली पहले भी काम किया हुआ था। और चौथी सिटी जो मैंने और आमना ने एक तरीके से कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ कि आमना ने चंडीगढ़ और मैंने अपनी एजुकेशन चंडीगढ़ में की थी, तो हमने वो चारों सिटी जो है कहीं ना कहीं एक जगह पे काम, उन जगहों पे रहे हैं, उन जगहों पे किया है। तो हमने वहां के लिए फोकस कर लिया कि ठीक है, जन की कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इन 4 सिटी में करेंगे, बाकी की बातें, जन की स्किल सेंटर्स की बातें आगे ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। मंदाकिनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सो नॉट टेकिंग मच ऑफ द टाइम, आमना यू कैन स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी विल नॉट वेस्ट टाइम, बट हाँ जरूर याद करेंगे, जैसे प्रदीप ने करेक्टिवली कहा, वो जो 4 सिटीज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे जिस तरीके से मैग्नीफाई होता है हम जरूर आप लोगों तक पहुंचे। सो डॉक्टर मंदाकिनी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। प्रदीप सर, आमना जी, थैंक यू। So Mandakini, we were saying that it is a very special episode of Janaki. Okay, and why is it special? Before I tell the audience, I would first give your introduction. Let's get to know Dr. Mandakini Shukla. So Dr. Mandakini Shukla is a dental surgeon practicing in Delhi NCR. She is a part of Hasna Foundation and has been working actively on many oral and many other awareness campaigns to empower, and has been engaging in a lot of other platforms with other platforms. So Dr. Mandakini, it's such a pleasure, and also she is a part of Atmanirbhar Bharat learning platform. So am I, and of course Pradeep ji is the one who's the convener. So come to think of it, it's a very family kind of vibe. It's that kind of engagement where we know each other a little better. We've worked together prior, and we know exactly what are the ethos, what are the ethics. So Mandakini is super happy and extremely grateful for you to taking out the time and doing this. Thank you. So Pradeep ji, want to add something, or can I shoot the question directly? आई थिंक मंदाकिनी जी से पूछने के जो घड़ियां हैं या कड़ियां हैं वो यही है कि जो हम ब्रेक द वॉइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मंदाकिनी जी सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं जिस सेगमेंट की साथ में काम करती है, दैट इज रूरल कम्युनिटी के साथ। और वहाँ ब्रेक द वॉइस
नॉट ओनली एज पर हर प्रोफेशन जो है वो है, वहाँ पे हेल्थ का भी है और वहाँ पे सोच का भी। तो मैं चाहूंगा कि मंदाकिनी जी उसी से आप इंट्रो करें, कि बताएं कि किस तरीके से वो जो ब्रेक द बायस है वो मौजूद नॉट ओनली हमारे पॉकेट्स, हमारे टाउन्स, हमारे सिटीज में, वो रूरल कम्युनिटीज में है अभी भी। और उसके साथ एक चीज और ऐड करिएगा प्लीज मंदाकिनी, जो बहुत जरूरी है, जिसको हम महिला स्वास्थ्य बोलते हैं, यू नो, हेल्थ केयर फॉर वुमेन व्हेन वी टॉक, हाउ डू वी रिलेट दैट विद वुमेन एम्पावरमेंट। उसको इसके साथ, जैसे उन्होंने कहा ग्रास रूट पर उन्होंने टच किया, एग्जैक्टली मेरे माइंड में वही था कि महिला स्वास्थ्य, एंड वी टॉक अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट एंड द वुमेन हेल्थ केयर। उस प्लीज टेल अस your thoughts and opinion. Thank you so much for giving me this opportunity. और जैसा कि आपने कहा कि महिला स्वास्थ्य कितना जरूरी है और कितना जरूरी है उसके बारे में बात करना और ब्रेक द बाइस के बारे में बात करना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्थ की क्या डेफिनेशन देता है। डेफिनेशन बहुत लंबी है, लेकिन उसको अगर हम छोटे टर्म्स में माने तो वो ये कहता है कि इट इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ अ फिजिकल और अ मेंटल प्रॉब्लम। सिर्फ एक बीमारी का ना होना ही अच्छी हेल्थ नहीं है। बीमारी, अगर कोई बीमार नहीं है तो ये मतलब भी नहीं है कि वो अच्छी हेल्थ में है। बीमारी ना होना, इसके अलावा भी उसके आसपास जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, सोशल फैक्टर्स हो, मेंटल फैक्टर्स हो, वो सब भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये सारी फैक्टर्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक गुड health and mental well-being को। So only the absence of a disease or pain does not qualify as a good health condition. So अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, जिस देश को हम भारत माता कहते हैं, जिसको हम जननी कहते हैं, जहाँ पर महिलाओं को इतनी इज्जत दी जाती है, उस देश में अनफॉर्चुनेटली अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, तो इक्वालिटी की बात करें, तो भी जो महिलाएं हैं वो अभी भी काफी पीछे हैं। जहां तक मैं अपनी बात करूं कि जैसे कि अभी प्रदीप सर ने बताया, आमना जी ने बताया कि बेसिकली आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, और जब कॉलेज में पढ़ाई करनी शुरू करी तो कॉलेज में गांव के बहुत लोग आते थे। उससे पहले इतना एक्सपोजर नहीं था, तो जब गांव के लोग आते थे तो गांव के लोगों से, गांव की महिलाओं से ज्यादा मिलना तब शुरू हुआ, और तब धीरे धीरे इस बात की समझ आई, वी रियलाइज दैट कितना डिप्राइव्ड है ये लोग रिगार्डिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। और ओरल हेल्थ केयर की तो इस देश में कोई बात ही नहीं करता, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट ओरल हेल्थ केयर। शुरू से हमारे देश में एक ये रहा है कि मुंह में दांत हैं, एक दांत दर्द है निकाल दो, बाकी दांत तो है। हमेशा से ये रहा है कि चलो भाई, एवरीबडी थिंक्स कि वी हैव 2 eyes, 1 nose, 2 hands, 2 legs, बट व्हाट अबाउट द टीथ? ओह, वी हैव 32 टीथ, इतने सारे दांत मुंह में हैं, अगर एक दांत निकल गया तो दूसरा दांत तो है खाने के लिए। बट इट इज नॉट ट्रू। टू एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस टॉक, आई मस्ट टेल यू दैट ईच एंड एवरी टूथ इन योर माउथ इज एन ऑर्गन इन इटसेल्फ। अपने आप में एक दांत एक ऑर्गन है। अगर मैं एक दांत को निकालती हूँ तो दूसरा दांत उसका काम करना शुरू नहीं कर देगा, वो दांत अपना ही काम करेगा। तो जो दांत आपने रिमूव कर दिया या जो जिस चीज का आपने ध्यान नहीं रखा, तो अगर उसका रिमूव कर देना आपके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर देता, वो तो उसको और खराब कर रहा है। और एक चीज मैं और यहाँ पे सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि जब हम मौखिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, ओरल हेल्थ की बात करते हैं, इट इज नॉट ओनली अबाउट टीथ। Oral health does not mean teeth. It means the health of the entire face, the facial muscles, your mouth, your cheeks, the cheeks from inside, your tongue, hair, ये ठीक है कि नहीं है, my teeth, my gums, and the underlying bones, ये bones मेरी ठीक है कि नहीं है। So all this comprises of good oral health. This all comes under dentistry. So एक बात हो गई जनरल ओरल हेल्थ की, वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है। और क्योंकि जनरल ओरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है विलेजेस में, रूरल एरियाज में, तो महिला स्वास्थ्य के बारे में तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालात होंगे। तो ब्रेक द बाइस जो आज हम करने की बात कर रहे हैं, तो इट इज अबाउट मेकिंग दीज वुमेन अवेयर ऑफ देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स, be it oral health problems or menstrual health problems or general body health problems,
and giving them that opportunity, giving them that freedom, and to express their problems, to bring them out in the open, to tell them to us. They have been forced to feel, and they have been forced to think that they have been made like that, they are born like that, and they have to live like that. But it's not true. It is we who have to bring it out. So that is how I feel that the oral healthcare initiatives or general healthcare initiatives, menstrual healthcare initiatives should be given a lot of weightage regarding this. Right. So I'll take this forward, as you said rightly, that the healthcare, and you addressed it right, that एक teeth आपने निकाला तो वो दूसरा teeth उसका काम नहीं करेगा, right? Similarly, when we talk about healthcare, or we relate it with the women empowerment that we're talking about, the inclusion we're talking about She Rise, we're talking about breaking the bias, we're talking about Nari Shakti Samman, yes, hands down. But overall, we were discussing this prior also, that the affordability, the accessibility, and the quality is not available. The question that Pradeep also said, that grassroots पर पिछड़े इलाकों में ये फैसिलिटीज ही नहीं है, तो वैसे मोबाइल कैंप्स लगने चाहिए, ये सब होना चाहिए, ताकि हम कलेक्टिवली ये काम आगे बढ़कर कर सकें और कोशिश कर सकें वो चेंज डेफिनेटली ला सकें. What do you say, Mandakini? Exactly, that is very true. Because even in today's date, if you were to visit these PHCs, the primary healthcare centers, the community healthcare centers, still they are lacking in basic needs and necessities. For example, some place you might not find a bed to make the patient lie down. Somewhere you might not find a nurse or a 24/7 doctor. So these are some very basic things that we are living in 2022. We really don't have any reason for not having these primary healthcare facilities. And if we are talking about women specifically, I can tell you so many cases. For example, in villages, even in today, when a child is born or when a lady delivers a baby, the first 40 days, as we all know, are very, very important. But the females in villages are told not to brush their teeth for the first 40 days. I heard that, yes. Right. So, for the first 40 days, the lady is not brushing her teeth. Imagine that. And on the other hand, she is being given goond ke laddus to eat for good health. Imagine having goond ke laddus and not brushing your teeth for 40 days together. The lady herself feels so bad and dirty about it. She feels so unhygienic about it. She wants to go out and brush. She wants to, clean herself up, but then she is not allowed. These are so difficult. And Pradeep said, वो सोच ही जब change नहीं होगी. Exactly. और ये सोच आई कहाँ से? जो महिला कल एक महिला थी, एक माँ बनी, वही आगे चलकर जब एक मदर इन लॉ या एक सास बनती है, वही ये सारे रूल्स अपनी डॉटर इन लॉ पर भी अप्लाई करती है. Correct. ये एक ब्रेक द बायस इस तरीके से भी होना है. Not only कि हम उनको जाके एजुकेट करें, but they educating each other. That is also break the bias. That is much more important than we doing it for them. Once the mother-in-law understands and realizes the fact कि ये जो मेरे साथ हुआ, वो मैं अपनी बहू या अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी. I get so many females from the villages who are hardly 28, 30 years old, and all their teeth are almost gone. They are not there in the mouth. They're all blackened, finished, gone. So this shows that one single tooth, if there is a problem in one single tooth, this shows that the patient has been brushing, the patient has been maintaining oral hygiene. By chance, किसी वजह से there has been a problem. But when the entire oral cavity is black in color, then you can imagine what the patient must have been through. Yeah, this is how we have to break the bias. So reaching out to them through mobile camps, mobile dentistry, mobile consultation services, and also going to them again and again. बार बार उन तक पहुंचना भी जरूरी है. सिर्फ मैं एक जगह जाके बोल रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, उससे बात नहीं बनती है. अगर मैं ढाकोला गांव में कैंप कर रही हूँ, तो आज अगर मैंने कैंप किया है, तो मैं अगले महीने या 3 हफ्ते बाद फिर से जाऊंगी. तो महिलाओं से फिर से पूछूंगी कि क्या वो चीज फॉलो कर रही है. सिर्फ एक ब्रश या टूथपेस्ट या एक मेडिकल किट दे देने से मेरी समस्या का हल नहीं निकलता. तो 1 महीने बाद जाके फिर चेक करूँ कि वो कर रही है कि नहीं कर रहे हैं.
Absolutely. The facts, the stories that Dr. Mandakini Shukla is sharing with us, people on Janki Talks, those who are watching, those who are joining now, just a heads up, सिर्फ आपको fill in कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं about healthcare and of course the empowerment of women together. We are also trying to communicate this going forward that सिर्फ कहने से नहीं होता है, करना पड़ेगा, and there is no other choice. So Pradeep ji, would you like to ask something? देखिए, not to ask of course something, but just to add on this what Right. Mandakini is saying. आप समझिए बात को कि मंदाकिनी जो कह रही है, डेंटल हाइजीन जो कि हम शायद सब लोग नॉर्मल सी चीज समझते हैं, उसमें इतना बड़ा गैप है, गैप एरिया, इतना बड़ा ग्रे एरिया ये खुद है, ठीक है। आप सोचिए कि फीमेल हेल्थ, फीमेल हाइजीन, देयर क्या बोलते हैं, अदरवाइज हेल्थ पैराडिगम and generations to generations the thought process of the people. वो जो मतलब जो दादी ने कहा था वो पोती बेटी में आना चाहिए था, बेटी ने जो कहा था वो पोती में आना चाहिए था, is it really required for today's time? Secondly, अगर हमने प्रॉब्लम फेस की है, मेरे को लगता है अगर मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस की तो मैं नेक्स्ट जनरेशन को, मेरी ड्यूटी बनती है कि वो बताऊं कि वो प्रॉब्लम आएगी, rather than actually उसी को फिर से रिपीट करना is not wise. आपको अगर ब्रेक द वाइस करना है तो ब्रेक द वाइस इस तरीके से करिए कि जब आपके पास प्रॉब्लम आई वो किस कारण से आई और उसका कैसे सॉल्यूशन हुआ वो जाके लोगों तक बताने की कोशिश करिए। और इट्स काइंड ऑफ द गैप एरिया जो है वो ऐसे फिलअप होगा। हाँ, टाइम लगेगा, सोच को लाने में, सोच को बदलने में टाइम हमेशा लगता है। हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि सोच को बदलना बहुत मुश्किल काम, वो जैसे मंदाकिनी जी कह रही है, एक बार कैंप किया, हेल्थ के बारे में बताया, दांत के बारे में बताया, ब्रशिंग के बारे में बताया, ब्रश टूथपेस्ट देके आ गए। लेकिन अगर वो एक महीने बाद फिर से नहीं गए ना तो वो जो लेसन है, वो जो चैप्टर है वहीं का वहीं क्लोज हो गया। तो आपको अगर रियली में फ्रूटफुली ऑन ग्राउंड उसका इम्पैक्ट लाना है, ऑन ग्राउंड आपका उसको इफेक्ट लाना है, तो आपको बार बार जाना पड़ेगा, बार बार उस प्रैक्टिस को हैबिट में बदलना पड़ेगा। एक्चुअली जब वो हैबिट में बदल जाएगी, अब मैं आपको बताता हूँ छोटा सा इंसिडेंट। ड्यूरिंग कोविड टाइम वी वर डिस्कसिंग विद वन ऑफ द आईएएस इन गुजरात, ठीक है। उन्होंने एक छोटा सा किस्सा बताया कि कोविड हुआ, प्रोटोकॉल लग गया, कोई कहीं जा नहीं सकता। देयर वाज वन पर्सन हु वाज गोइंग, आई थिंक बाल्टी या क्या समथिंग कंटेनर ही वाज टेकिंग। तो जो आईपीएस सर थे उन्होंने उनको रोका, कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि वो 12 किलोमीटर पे वहां पानी मिलता है, वहां पानी लेने जा रहा हूँ। बोला क्यों पानी लेने जा रहा हूँ? बोला हम सब तो पानी वहीं से लेके आते हैं। बोला कब से? बोला ये तो सदियों से चला आ रहा है। तो वो आईपीएस जो सर थे उन्होंने आईएएस से पूछा ये क्या चक्कर है यार कि सब लोग बोल रहे हैं पानी लेने जा रहे हैं। तो उनको बताया गया कि आज से 20 साल पहले, आपको याद होगा 1992 में प्लेग हुआ इंडिया में, सूरत में, ठीक है। तो प्लेग का मेन रीजन था द पानी, द वाटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो उस टाइम पे टेम्पररी एक सेटअप किया गया था कि यहाँ के लोग यहाँ का पानी नहीं लेंगे, 10 किलोमीटर अवे से जाके एक बोरवेल बनाया गया था और वहां से पानी लेंगे। वो प्रैक्टिस फॉर ए टेम्पररी बेसिस शुरू हुई। वो प्रैक्टिस 1992 में शुरू हुई थी। उस प्रैक्टिस को 2020 में भी यूज किया जा रहा था। लोग 10 किलोमीटर अवे जाते थे, पानी लेके आते थे। और कोविड के दौरान में जब लोगों से पूछा गया कहाँ जा रहे हो भाई, तो सबने बोला हम पानी लेने जा रहे हैं। अब सोचिए कि वो जो प्रैक्टिस है, जो हैबिट हमारी बन जाती है, वो कितनी कारगर और कितनी इफेक्टिव होती है। और आप उसको ग्रास रूटली इतना ज्यादा इफेक्टिवली वो घुस चुकी होती है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। बाद में जब आईएएस सर हैं जो वहाँ के कमिश्नर थे, उन्होंने एक चीज और पता की और हम लोग को कन्वे भी किया कि वहां पे हर घर में पानी आता है नल से। आप सोचिए, मानसिकता सोचिए कि घर में पानी कॉर्पोरेशन दे रहा है, लेकिन 20 साल पहले जो कहानी हुई है उसके कारण लोग मन में बैठा लिए कि पानी वहीं से लेके आए। और वो चेंज है, वही चेंज लाने में बहुत टाइम लगता है। वही चेंज को, क्योंकि कोविड हुआ, फिर लोगों को रेस्ट्रिक्शंस आई। अब 2 साल के अंदर अंदर सब लोग वहीं से पानी ले रहे हैं, अपने टैप से ले रहे हैं।
लेकिन मानसिकता को बिल्डअप करना बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है एक्चुअली में। ब्रेक द आइस, जब भी हम बात करते हैं ना, तो वो आइस ब्रेकर है हमेशा सबके लिए कि कर रहे हैं कैसे। तो सही कहा बिल्कुल, और यहीं से क्यों लूंगी मैं कि आइस ब्रेकर एक्चुअली है कि हम चाहते हैं, वी वांट इट, बट करें कैसे। अब करने का जो बात है वो यही है कि आप कलेक्टिवली आएंगे। एटलीस्ट अगर आप ग्राउंड पे कुछ नहीं करें तो एटलीस्ट उसके बारे में संवाद तो करिए, बात तो करिए, ऐसी मूवमेंट्स को इनकरेज करिए। मेरा ये मानना है, बहुत स्ट्रांगली ये मानना है मुझे। शी राइज जब मैं फॉर्म कर रही थी, जस्ट अ हेड्स अप फॉर माय ऑडियंस हु आर कनेक्टिंग एंड दोज हु कनेक्ट विद मी अदरवाइज एज वेल, जस्ट अ हेड्स अप फॉर यू पीपल, जब मैं ये डिवाइस कर रही थी और क्यूरेट कर रही थी, आई हैड वन ऑफ माय पार्टनर्स हु वाज विद मी, दैट जेंटलमैन वर्क्स विद टाइम्स ऑफ इंडिया, आई वाज विद टाइम्स टू, एंड हम लोग जब शी राइज क्यूरेट कर रहे थे, हमारा फंडामेंटल सिर्फ इतना था, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट taking everybody together and saying what this can actually happen। वो ग्रोइंग इंडिया एक्चुअली बन सकता है अगर हम मिलकर साथ चले, चाहे वो मानसिक लेवल पर है, चाहे फिजिकली इंगेज करके। जैसे प्रदीप ने बिल्कुल सही कहा कि करें कैसे, हम बता रहे हैं ना, जनकी के साथ जुड़िए। सो मंदाकिनी कमिंग बैक, ये तो हमने शुरू कर दी बात। सो आप पर आते हैं, थोड़ा सा लाइट करते हैं। अच्छा, हमारी ऑडियंस को प्लीज बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, as to what are your hobbies, what do you like doing, and a little general information about you. Okay, apart from doing my dental thing, I am a mother to 3 lovely kids. They take up most of my time. Yeah. And as far as my hobbies are concerned, well, I'm a biker, and I'm a Royal Enfield rider. And 4 बजे उठ के निकल जाती हूँ, कभी कभी अपना बैकपैक लेके उसमें टूथपेस्ट भर लेती हूँ, और जहाँ घूमती भी जाती हूँ, जहाँ कोई बच्चा मिल गया, कोई छोटा बच्चा मिल गया सड़क पर जाता हुआ, या कोई छोटी कम्युनिटी मिल गई, वहाँ पर मैं ब्रश और टूथपेस्ट दे आती हूँ। हालांकि उन लोगों को थोड़ा सा दोबारा से कैचअप करना मुश्किल हो जाता है, बट देन आई एम हैप्पी कि चलो ठीक है, आई कंट्रीब्यूटेड समथिंग, so that's something I like doing. So apart from that, I love swimming. बड़ी सालों बाद, 2 सालों बाद the pools are again open, so I am enjoying my swimming early in the morning these days. Yeah. So that is how I spend my spare time. Otherwise I am busy in the clinic with my patients, और जो भी टाइम मिलता है बाकी मुझे, मैं गांव में काम करती हूँ और अपनी END टीम के साथ जुड़ी रहती हूँ, उनके साथ मिलकर, क्योंकि टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट योर टीम यू आर नथिंग। तो END की तरफ से जो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम विद वेरी वेरी गुड पीपल हियर, और आज भी प्रदीप जी हैं, आमना जी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये डिस्कशन करके कि हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, और एक टीम एफर्ट क्या चीज होती है ना, ये आई थिंक हमारी जो ऑडियंस आज देख रही है, सुन रही है, वो ये रियलाइज करेगी कि ठीक है, मैं एक सेक्शन में काम कर रही हूँ या मेरा NGO एक सेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन बाकी लोग जो है, जो बाकी फील्ड से हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो, बाकी लोगों का भी जुड़ना कितना जरूरी है, तब जाकर हम एक्चुअली एक चेंज ला सकते हैं ग्रासरूट लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेक द बायस, वी आर यूजिंग द वर्ड ब्रेक अगेन एंड अगेन। ब्रेक का क्या मतलब होता है? तोड़ना। हम तोड़ते कैसे किसी चीज को? बार बार उस पर चोट मारकर, अगेन एंड अगेन। हमें सोचना चाहिए, कभी किसी ने सोचा कि हम चेंज क्यों नहीं कहते, चेंज द बायस, क्योंकि चेंज भी इतना आसान नहीं है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम को जो आज भी इंडियन रूट्स को खा रहा है, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है, टू ब्रेक इट, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है। That is why we are using the word break the bias, because it is so bad. It is sinking into our roots, into our system, into our healthcare, education, overall development. They are all so tightly knitted, actually. इस चीज को ब्रेक करना जरूरी है, इसीलिए हम ये वर्ड ब्रेक यूज कर रहे हैं बार बार। तो I think I am loving this teamwork and all, तो बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ इंटरेक्ट करके। Just add this to what you've just said. For one, I'll go back to your Enfield look, because I'm imagining you right now. I'm a man. I love doing that. मुझे बहुत कमाल लगा। देखो, एक सुंदर सी, beautiful सी डॉक्टर riding a bike, with all that is so amazing, isn't it, guys? And also, you said so right that it has to be broken, right? You have to break the glass ceiling. बार बार करना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, जैसे वो सास बहू सीरियल्स होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, a lot of people love them, watch them,
बट नहीं नहीं नहीं, उसका रेजोनेशन तो आता है ना, तो वो बहुत जरूरी है. एंड यस, अ वेरी क्विक स्वीट मेंशन टू A&B प्लेटफॉर्म. मैंने प्रीवियस सेशन में भी कहा, मे बी आज शायद प्रदीप जी आपका डे है, कभी आएगा मेरा, बट सो आज बिकॉज वो फैमिली से एक वाइब है इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने और प्रदीप ने कनेक्ट किया कोविड टाइम से, राइट, सो वी गॉट कनेक्टेड ऑन दैट टाइम. उससे पहले हमने किया है काम, वी बीन कनेक्टेड, बट इंक्लूसिविटी को लेकर, डाइवर्सिटी को लेकर, जनकी को लेकर हम जब सोच रहे थे, हम बात कर रहे थे, तो हम यही चाह रहे थे यार किस तरह से हम सारे पैराडोज लिंक करेंगे, किस तरह से हम करेंगे, और इंक्लूजन किसी नए का भी इस प्लेटफॉर्म पर. लाइक फॉर मी, आई एम अ न्यू मेंबर इन योर segment. So it is also very important that how it happens and how it goes. That's where, you know, the teamwork, the faith, the trust, you know, rolls out. And that is why there is a chilled out vibe. हम आज relaxed हैं मंदाकिनी के साथ. हम बहुत ज़्यादा, Pradeep and I are not like very formal. You must have noticed. So health awareness across. Biker भी हैं, एक बहुत कमाल की डॉक्टर भी हैं, और जो फिलैंथ्रोफी करती हैं और जो काम करती हैं वो अपनी जगह बहुत सराहनीय है. And going forward, Mandakini, one serious question that I'd like to ask you about the gender gap, because that is what we have to really address too, that gender gap in the medical field. I want you to put a light. I don't want to frame a question and say, because I want to keep it open as to how, what you know, you see or you've experienced, because it's very experiential. You know, when it comes to higher positions, the other day we were discussing that we hardly see strong women in that position, right? Is it because they're not that qualified or skilled, or we don't have them, or because of any other reason? Please shed some light for audiences. As far as gender bias is concerned, it goes back to, I don't know, thousands of years probably. And maybe that has got so ingrained into our minds and thought that even in the very influential educational societies, cultures, civilizations, it's still there. It's still there. Despite there being such a huge and hard fight for it, we are still facing that discrimination, even in the urban households. Why only rural ones? Even in the urban households, and it comes in so many ways, and it is so many times it is disguised in so many forms. It becomes difficult for us to even sense it or judge it. For many females, it is like that. So even if you go towards the rural areas today, that bias still exists, be it healthcare, oral healthcare, or general healthcare, menstrual health, you know, and be it education, it's always there. The boy is always preferred. We are talking about education or healthcare or whatever we are talking about. So there have been so many instances even in healthcare field. So definitely that bias is there, and we have to do something to, you know, break it and to work about it, work around it. And especially जो महिलाएं हैं ना, उनको जागरूक करना है. That जागरूकता is needed to, you know, make them understand that yes, you too have a say. तुम ऐसे पैदा नहीं हुई हो. You have not been born like this. You are born as an equal. You are born as a human being, as equal to as a boy. So you have every right to, you know, read and write and grow in your field in whatever way you want. So that gender bias definitely is in healthcare field also. We are still preferring the male child over the girl, and there have been so many instances which I've seen in hospitals where, you know, the females have been beaten for this, and so many other problems. Nobody talks about their health, and it happens even today. There's so many instances. So, but the problem is so deep that again I would say that the collaborative efforts are needed to, you know, make them independent. And independence comes from education, good health, and financial, you know, independence. So financial independence is very, very important in that way. Once a woman is financially independent, she can take care of her own education or her own health care. So financial independence is something that really needs to be looked into for these females to make them Atmanirbhar. True. About self-reliance. So Atmanirbharta here, I would say, is very important. Very important. So, for example, during these COVID times, we have been serving so many people with Donate a Meal campaigns and menstrual health and hygiene, and you know, a distribution of so many things, medicines and all. But this distribution, etc., we can do it to a certain extent. Of course, it's the post-COVID time, and people are struggling a lot. And we are doing everything to
to support them. But then self-reliance is a totally different platform altogether, and if we can achieve it, then there's nothing like that. So if we can think about, self-reliance and making these women independent, automatically the equality will start flowing in. So that flow will start coming in. So that is how I see it. Yes, being Atmanirbhar is very important. Very important. So, Pradeep, you'd like to add something? Just with the conclusion how the discussion was going on, and what actually Amna ji has asked. आपको सबको हम लोग सबको याद होगा कि हमारे स्कूल डेज में अगर हम मेडिकल की पढ़ाई की जब बात करते थे तो गर्ल्स यूजुअली शो मोर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द मेडिकल. ठीक है, मतलब मैं ऑफ कोर्स वी आर एट डिस्कसिंग अबाउट द ब्रेक डिवाइस, बट हाउ इट इज एक्चुअली एंड व्हाट इट इज आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मंदाकिनी जी. Girls are more towards medical studies, but once it is coming as per the data, the number of doctors, if I talk about, still girls are behind as compared to boys. Is it due to the thought process of the person or the society that पढ़ाना है तो सिर्फ लड़के को पढ़ाना है, लड़की को नहीं पढ़ाना, something like that? It is correlated to this or not? Many times, sir, I have seen in my field also that many parents, they put their daughters to colleges only to get a better match or a better groom for their life. सिर्फ इसलिए पढ़ लो कि एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा. इसके अलावा एजुकेशन का उनके सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है. I have so many friends who are postgraduates in dentistry. And that post-graduation, after the wedding, after the marriage, the parents or the in-laws have said, ठीक है, तुमने पढ़ लिया है, अच्छी बात है, अब तुम घर संभालो. I am not saying that घर संभालना important नहीं है, बहुत ज़्यादा important है. It is one of the most important things in the world, because अगर महिलाएं घर नहीं संभालेंगी, तो घर बिखर जाएगा. तो लेकिन this does not mean that they cannot go out and work. Everything can be managed if they get that proper support and that opportunity. अगर सारा परिवार मिलकर एक महिला की थोड़ी सी हेल्प कर देगी, चलो इतने से इतना एक टाइम टेबल बना ले, सपोर्ट कर दे, so every single female can go out and work. They have that knowledge, they have that understanding, they can manage it. आजकल कितनी सारी हम लेडीज हैं जो देखते हैं, who get that support, they are working night shift, पूरी रात वो लोग काम कर रहे हैं और दिन में आके वो अपना घर भी संभाल रहे हैं. So they have that capability. What they need is a little bit of support, be it from their parents or their in-laws or their husband or anybody in their family. So that is the only thing that these females, they are requiring a little bit of support and that change of mindset. कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, जो अब तुम नहीं कर सकती हो. No, it's not like that. Or if, for example, if a lady has taken a maternity break or a 2-year break for maternal reasons, which is very much obvious and which is very much justified, then it does not mean that she cannot come back into the workforce. There are so many times when females are told कि ठीक है, अब 5-year break हो गया है, अब तुम क्या करोगी, अब छोड़ दो, अब घर ही संभालो. Why? When the children have grown up, they started going to school, then why can't the lady go out and work? Why can't she rejoin the workforce? She can. All she needs is a little bit of push, a little bit of confidence. Yes, a little bit of, if you put your confidence into her, you tell her कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम जाओ, थोड़ी देर बच्चा हम संभाल लेंगे, थोड़ी देर खाना हम देख लेंगे, थोड़ी एक सब्जी हम बना लेंगे. So how good it will be, how good she will feel, how mentally healthy she will be when she finds that उसकी family उसको इतना support कर रही है. Of course, maternal responsibilities come first. But once she has taken care of them, I don't think there is any reason for not allowing her to go out to work. So these are the problems that I feel that Pradeep sir was saying, that education में लड़कियां हमेशा आगे रहती है, लेकिन जब काम करने की बात होती है तो पता नहीं वो workforce कहाँ चला जाता है. The women workforce is suddenly not there on the forefront. But Uska, I think the core reason, I'll take you back to what you said, that at the grassroots, if you go back, like the question that Pradeep asked you in the beginning and I added to it, आप
आपने बताया, ये आपने एग्जांपल दिया, ऑडियंसेस प्लीज नोटिस, अगर आपने नहीं सुना है वापस जाइए सुनने का। शी शेयर्ड कि 40 डेज तक व्हेन अ वुमन इज हैज डिलीवर्ड अ बेबी, वो उस ओरल हाइजीन की हम बात कर रहे थे, और वो ये बता रही थी कि वो उसको अलाउड नहीं होता टू क्लीन हर माउथ एंड एवरीथिंग। तो आप ये सोचिए कि इतनी रूढ़वादी अगर सोच है तो अभी कितना काम करना बाकी है इन रिगार्ड टू व्हाट वी आर रियली टॉकिंग अबाउट। ब्रेक करना, यस, वो बार बार करना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स। ये पावर्टी माइंडसेट ही है ना मंदाकिनी, जैसे आप बोल रहे हो, और क्या है, is a poverty mindset. So gender equality, I think, is not a goal. I mean, let's put it this way: it's not. It's a precondition to remove the poverty mindset. ये हटाना बहुत जरूरी है। ये रूढ़वादी सोच, ये पुरानी सोच के यार ऐसा होता चला आ रहा है, इसलिए हम ऐसा करते जाएंगे। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। एंड अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप बेटर इंडिया या बेटर सोसाइटी का संचार कैसे करेंगे? इसीलिए हम ये संवाद कर रहे हैं एट जनकी टॉक्स। सो मंदाकिनी, थैंक यू फॉर द इनपुट यू शेयर, दे सो एनलाइटनिंग एंड सो इन्फॉर्मेटिव। प्रदीप जी, प्लीज ऐड समथिंग। या देखिए, जो मंदाकिनी जी ने जैसे बताया ना कि ये जो हमारे सोसाइटी में जो चीजें मौजूद हैं, ऑफ कोर्स मौजूद हैं, लेकिन उससे निकलने के तरीके हमें निकालने पड़ेंगे। वो जो मैडम बात कर रही है ना ब्रेक करने के लिए, मैनेजमेंट में उसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कि एमबीओ हम लोग उसको बड़ा करते थे। उसमें हम क्या करते थे कि सारी चीजों को सिस्टमेटिकली ब्रेक कर देते, ठीक है, टुकड़ों में ब्रेक कर देते थे और उसकी माइलस्टोन, उसकी टाइमलाइन बना देते। वही एक्टिविटी ब्रेक द बाइस में भी करनी पड़ेगी। अगर आपको वो बाइसेस तोड़ने हैं तो आप एक बार में आप सोचे ना, अगर हम सोचे कि एक बार में आप पूरे बाइसेस तोड़ ले जाएंगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसकी माइलस्टोन सेट करनी पड़ेगी कि अभी इतना करते हैं, पहले यहां से यहां तक निकाल लें, पहले लड़कियों को 8वीं से 10वीं तक ले जाए, पहले ड्रॉप आउट जैसे हम स्कूल में करते हैं। स्कूल का सबसे फोकस एरिया, सबसे बड़ा फोकस एरिया पता है क्या है? कि ड्रॉप आउट ना हो। उसके बाद दूसरा बड़ा फोकस एरिया है कि 10th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। उसके बाद तीसरा फोकस एरिया है कि 12th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। अब ब्रेक द बाइस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, लड़कियां ज्यादातर मेडिकल चूज करती हैं, लड़कियां इंजीनियरिंग चूज करें। ब्रेक द बाइस की बात करें तो लड़कों को बोलिए कि जिस तरीके से लड़कियां मेडिकल की तैयारी के लिए सोच रही हैं, आप मेडिकल की तैयारी की सोचिए। ये रिफॉर्म जो है ना, ये सोच जो है, वो बदलने के लिए आपको टुकड़ों में थोड़ा काम करना पड़ेगा। जब वो टुकड़ों में हम काम करेंगे ना, तब वो माइलस्टोन और उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। हाँ, लंबा समय लगेगा, ये बात है। ऐड जरूर करना चाहूंगी क्योंकि आप बेटर इस पे और रोशनी और डाल पाओगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम जनकी की बात करें, हम स्किल सेंटर्स की भी बात कर रहे हैं। ये कितना कॉन्फ्लिक्टिंग है, आप सोचिए। एज मंदाकिनी, यू ऑल्सो कम टू थिंक ऑफ इट, जस्ट इमेजिन कि हम बात करते हैं हेल्थ केयर, जब बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो है वो औरतों के ज्यादा हैं, राइट? वो उनके ज्यादा हैं, लेकिन उनके पास वो बेसिक हेल्थ केयर वाला हिसाब किताब है ही नहीं, वो प्रोसेस ही नहीं। पावर्टी माइंडसेट कितना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से जा रहे हैं, ये कैसे वो बड़े स्तर पर जब तक नहीं होगा, जब बड़े स्तर पर उस तरीके के रिफॉर्म्स नहीं आएंगे या उस तरीके के चेंजेस नहीं आएंगे, तो नीचे वो कैसे, अनलेस वो ऊपर से आएगा, फ्लो कैसे करेगा नीचे? That is true. That reform जो होता है ना, जैसे कि अभी सर ने कहा कि one step at a time. This reminded me of a game जो हम बचपन में खेलते थे, leapfrog. There were stones and there was a frog which was jumping from one stone to another. तो वो एक स्टोन से दूसरे स्टोन पर जाता है, फिर वो बैठता है वहां पे, असेस करता है कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, और फिर वो उसके आगे एक नेक्स्ट स्टेप पर जाता है। तो जैसा कि अभी आपने कहा, ये जनकी स्किल सेंटर है, so that is such an amazing idea for these skill centers for making these women आत्मनिर्भर। अगर हम इस तरीके के स्किल सेंटर्स ला सके और at various locations जहाँ पर हम इन लेडीज को ट्रेन कर सके in different fields, be it some home sciences or be it in the field of education or healthcare or whatever, जहाँ पे भी उनकी एक्सपर्टीज हो या जहाँ पर भी उनका कोई इंटरेस्ट हो, अगर हम उस चीज को डेवलप कर सकें तो nothing like it. We can think about it, and in fact we should take this forward step by step.
Right, absolutely. Yeah. देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मंदाकिनी जी ने कहा कि जब हम किसी को भी ये चाहते हैं ना कि चेंजेस हो या रिफॉर्म हो जाए या वो उसको क्या बोलते हैं कैपेबल हो जाए, तो इन सब चीजों को करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट तो चाहिए होता है। एक स्किल डेवलपमेंट की भी एक्टिविटीज को इनग्रेव करना पड़ता है। अब बात यह है कि साड़ी बनाना सबको आता है, ठीक है, साड़ी में पॉकेट डालना सिर्फ स्वाति सिंह को आता है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, साड़ी बनाना तो सबको आता है, साड़ी बनाने के में साड़ी में जो पॉकेट है कि वो कैसे लगती है और कैसे अच्छी लगती है, अभी तक हिंदुस्तान में सिर्फ वो स्वाति सिंह कर पाती है, तो वो बाकी लोग क्यों नहीं? और उस चीज को करने की कोशिश लोगों तक पहुंचने, लोगों को वहां तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों को स्वाति सिंह के पास भी पहुंचना पड़ेगा, स्वाति सिंह को भी लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, तब वो चीजें धरातल पे हो पाएंगी। मतलब मेरे पास कुछ है लेकिन मैं आगे नहीं आया, लोगों के सामने नहीं गया, तो लोग भी तो नहीं आएंगे मेरे पास। ये ना ये जो है 1 to 1 है, ये क्रिएट इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ता है इसके लिए, तभी आगे बढ़ पाता है। आप एक जगह पे एक चीज करेंगे दूसरी जगह, क्योंकि सबके देखिए सबकी जो क्षमताएं हैं, सबकी जो जरूरत है वो अलग अलग, और उनकी नीड के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से हमें अपग्रेड करना होता है। क्योंकि अगर हम अपने हिसाब से करेंगे तो कभी भी वो हो ही नहीं पाएगा। अगर लेडीज, सपोज मैं आपको बताता हूँ, 10 लेडीज कह रही हैं कि हमको थोड़ा बहुत चिल्ला मिलना आता है, ठीक है, अब आप उसको अपस्किल करेंगे तो उनकी जो स्किलिंग जो आप अपग्रेड करेंगे वो सिलाई में तो कर पाएंगे। लेकिन यही कोई दूसरी लेडी है, वो कह सकती है कि मैं 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, ऐसे 10 महिला और हो गई, ठीक है, कि मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो आप स्किल कहाँ करेंगे उसको? उन पढ़ाने की कल्चर में उनको अपस्किल करना पड़ेगा आपको कि ठीक है आप 10 लोग मिलकर चलाइए कोई सेंटर, और वो सेंटर जो है इस तरीके से काम करेगा, उसमें से 2 लीडर आप बनाएंगे, उन 2 लीडर्स को थोड़ा सा ट्रेन और करेंगे कि कैसे 8 लोगों को और संभालना है। यही प्रोसेस तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना कि वो लोग, उनकी क्षमता क्या है और उस एरिया की नीड क्या। अगर क्षमता और नीड को हम मैच कर ले गए और कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलता रहा, आइदर थ्रू CSR और अदरवाइज आल्सो जहां जहां से भी सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं CSR की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के तक कारण सपोर्ट मिल गया, किसी व्यक्ति विशेष ने हमें सपोर्ट कर दिया, तो इन सब तरीके से ही उस जन की स्किल सेंटर्स भी इनेबल हो सकता है। और जब हम बात करेंगे, बताएंगे, तभी वो चीजें आगे भी आएंगी, तभी वो शायद शुरू भी हो पाएंगी। एब्सोल्युटली। सो वही बात है, घूम फिर कर एक ही बात आती है कि ये जो ब्रेक करना है, जैसे मंदाकिनी का और इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम शायद, बिकॉज दे स्मार्ट इंटेलिजेंट पीपल देयर एज वेल, सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम यही था, ब्रेक द बायस दिस टाइम, राइट? सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एज अ वुडपेकर, like we're going to nudge you, we're going to nudge you bad, and we're going to tell you that we need this, junkie skill centers as well, or in whichever form you guys can come forward and try to ensure that you can help us break the bias, engage with us so that we can empower so many on the journey. As we all know that it's not the destination, it's the journey that matters. And I remember, I have to say this, in one of our sessions I think somebody said, I think you said it, who said it I don't know, but you said it, that जो हमारा ओवरऑल नक्शा होता है या जिनके साथ हम जुड़ के काम करते हैं ना, वो भी बहुत एक्चुअली में हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज, द काइंड ऑफ चेंज वी वांट अराउंड अस। सो टेकिंग दिस फॉरवर्ड, अभी बड़ी हेवी सारी बातें होगी, स्ट्राइकिंग क्विकीज करते हैं। और इस बार प्रदीप जी मैं पूछने वाली मंदाकिनी से, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद, अच्छा मंदाकिनी, सिंस यू आर अ राइडर, सो it's not a cool thing to ask, but if I ask you, a car or a bike? Okay, a bike. A bike, okay. Okay, tell me, music or dancing? Music. Music, okay. All right, let me just think. Pradeep ji, ask something more in the meanwhile. Mandakini ji, whenever you are going with a bike for a biking, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सीट्स लेके जाएंगे या टूथब्रश लेके जाएंगे? नाइस। क्या पूछा सर? आप सीट्स लेके जाएंगे? सीट्स लेके जाएंगे प्लीज? पौधों के
बीज लेके जाएंगी कि टूथपेस्ट लेके जाएंगी? शायद दोनों। आपको पता है मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा? हाँ जी। There is one group, that group is actually very much active in Uttar Pradesh and across India they are doing biking. आपको पता है वो बाइकिंग के साथ में एक बहुत अच्छा मुहिम चलाते हैं साथ में। वो जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने साथ बीज लेके जाते हैं। बीज लेके जाते हैं। I've done that too. Amazing है ये तो. Amazing people those are. I think hunters are biking hunters is the group actually. And one of the person, one or two people, those who are here in Lucknow, they are very well connected. तो जब कभी भी जाते हैं, प्रदीप जी हम लोग त्रिपुरा जा रहे हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ बीज फेंकते हैं ना उसकी क्लिपिंग करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि वो जैसे किसान नहीं, किसान जिस तरीके से अपने खेत में कर रहा होता है, ये लोग बीज वैसे फेंकते हुए निकल जाते हैं. And it's good act. True. True, true, true. अच्छा, शाहरुख खान, सलमान खान? शाहरुख खान, always. अच्छा, फेवरेट सॉन्ग कोई शाहरुख खान का? तू हाँ कर या ना कर. Oh, way back, great, wonderful. Okay, so you like sweet or you like salt more? What do you like? Salt. Okay, nice. So wonderful having you, Mandakini, here and sharing your thoughts, your experiences at Janaki, for Janaki. You are family. It's very relaxed. It's very chilled out. Knowing that women empowerment, as we all know, can be defined in many ways. But they say that, equal healthcare stands super tall, right? For one, that health is not just physical health. That health is also your emotional well-being. We are trying to talk about the well-being, which is internal and external. The dynamics can be many. Labels aside, let's talk about it again, that we all are unique in our own special way and we all are equal. We need to think equal. As we've been resonating this कि वो सोच बदलनी बहुत जरूरी है. उसके लिए आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस के ऊपर बात करना और उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. ये संवाद करने बहुत जरूरी है ताकि हम ये कह सकें ये अदर हाफ की बात नहीं है, ये बेटर हाफ की बात है. हम ये कह सके कि हाँ, हम जो करने जा रहे हैं जनकी के साथ. जनकी इज व्हाट? जनकी इज जनकी फॉर द पीपल. It can be a man, a woman or a third gender. हमारी कोशिश इस श्रृंखला के दौरान और जो हम ये ऑन ग्राउंड करने जा रहे हैं, जैसे प्रदीप जी और मेरी गुफ्तगू आप अगर सुनेंगे जब मंदाकिनी ज्वाइन कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि इस सिटी में हम प्लान करें, हमारे साथ जुड़िए, engage, empower so that we can bring about the awareness together. Mandakini, it was lovely having you. Audiences, like, share, subscribe. Mandakini ka handle would be underneath. Pradeep ji, Atmanirbhar Bharat ka handle would be underneath. Verse It Out ka handle, of course, would be there. So do follow us, to support us, and looking so forward to your cooperation on 1st of May at Greater Noida with GL Bajaj and the other supporters, collaborators. I'm extremely gratified for this one. Pradeep ji, your closing thoughts. Thanks to Amna and thanks to Mandakini ji. My closing note is only that we need to meet, we need to think, we need to grow, and we need to break the bias. Break the bias for what? What are the things which we cannot actually make people to understand in steps with the objectives to make them to understand. Let us go. Let us meet at GL Bajaj Institute on 1st of May and try to break the bias in form of meeting with others. Thank you. Namaskar. Namaskar. Thank you so much. Bye-bye.